بولنا ہوگا، سچ سننا ہوگا، چاہے وہ کتنا کڑوا ہو۔ ہم نے پچھلے کئی دن گزارے یہی سچ آپ کو سنانے کے لیے، یہی کڑوا زہر آپ کو دینے کے لیے کہ اگر آپ اب سچ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کا علاج کیسے ڈھونڈیں گے۔ بے پناہ ہمارے ان پروگرامز کو سراہا گیا ہے، پورے پاکستان سے پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں نے ہمارے ان پروگرامز کو سراہا ہے اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے ہمیں فیس بک کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، دوسرے پیغامات کے ذریعے کہ پاکستان کو اگر اس مصیبت سے نکالنا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا اور اب ہمیں جھوٹ سے کام نہیں لینا ہوگا اور اپنے مرض کو پہچاننا ہوگا۔ 3 پروگرامز کا نچوڑ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہم نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ مان لیں کہ پاکستان عالمی دہشت گردی کا دنیا کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ یا آپ مان لیں کہ پاکستانیوں کے خلاف اعلان جنگ چند مٹھی بھر پاکستانیوں نے ہی کیا ہوا ہے اور انہی سے جنگ کرنی ہوگی۔ یہ بھی پہچان لیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے نظام کو بے پناہ سنگین دھچکا لگا ہے، اسے کھنگالنا ہوگا اور گند نکالنا ہوگا۔ پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے اس پروگرام کی جھلکی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان یہ مان لیں کہ دنیا بھر میں عالمی دہشت گردی کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آج اس وقت جب پیرس میں فرانس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کی حکومت اور وہ 18 کروڑ عوام جن کے وہ وزیر اعظم ہیں، اتوار کی شب ایبٹ آباد میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے انتہائی ہیجانی اور امتحانی کیفیت سے دوچار ہیں۔ گیلانی صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان نے سرکاری کرپشن اور حکومتی نااہلی کے عالمی ریکارڈ تو قائم کیے، مگر اس تازہ پیش رفت کے سبب امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جہاں پر وہ آج اور اس وقت صدر سرکوزی کی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان تمام ممالک سمیت دنیا کے اہم ترین ممالک ان کی حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا کا سب سے مطلوب شخص گیلانی صاحب کے سرکاری محل سے صرف 25 میل کی دوری پر چھپا ہوا تھا اور ان کی حکومت اسامہ بن لادن کے پاکستان میں نہ ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ یہ تو وہ سوال ہے جس کا جواب گیلانی صاحب کی حکومت کو دنیا کو فراہم کرنا ہوگا، مگر وزیر اعظم صاحب فوراً پیرس سے اسلام آباد لوٹ آئیں اور اس قوم کو بتائیں کہ آخر اتوار کی نصف شب کے بعد امریکی فوجی دستوں کے ایبٹ آباد پر حملے کے دوران پورے 1 گھنٹے تک پاکستان کا دفاعی نظام کیوں کر مفلوج رہا۔ جی ہاں، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا اقرار اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت سینہ ٹھوک کر کرتی نظر آ رہی ہے۔ آج پوری قوم کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ امریکی، بھارتی، اسرائیلی حکومتیں پاکستان کے انٹیلیجنس اور دفاعی نظام کا مذاق اڑاتی پھر رہی ہیں۔ اتوار کی شب پاکستانی ادارے مفلوج رہے، غیر مؤثر رہے۔ اس کا میڈل سینے پر سجائے CIA کے سربراہ لین پینیٹا امریکی عوام کو سینہ ٹھوک کے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کس طرح سے پاکستان کو امریکہ نے بے بس کیا۔ Pakistanis did not know anything about this mission. And that was deliberate on our part that this would be conducted as a unilateral mission. President Obama had made very clear to the Pakistanis that if we had good evidence as to where Osama bin Laden was located, we were going to go in and get him. And that's exactly what happened. So I think the only time the Pakistanis found out about it, frankly, was after this mission had taken place. We had to blow the helicopter, as you know, and that probably woke up a lot of people, including the Pakistanis. Going into this kind of sensitive area with helicopters and SEALs and landing on this compound, would the Pakistanis suddenly respond and try to pin down our forces? Frankly, we considered all of those contingencies. That's why we had the backup helicopters in place. But the reality was that I think in going in, I think the military commander felt confident that we would be able to get in and get out, hopefully within 30 to 35 minutes. And the fact was that we completed this operation within 40 minutes, and we had everybody on their way out of that country. And even at that point, the Pakistanis were not aware of just exactly what had happened. پوری دنیا میں شرمندگی کے اس ماحول میں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ صدر زرداری اور وزیر اعظم گیلانی سامنے آتے اور پاکستانی قوم کے سامنے بتاتے کہ ان کی حکومت کب، کہاں اور کیوں سوتی رہے۔ حکومت بتائے نہ بتائے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ من حیث القوم ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ مختلف فوجی اور جمہوری حکومتوں کی دہشت گردی کے بارے میں دوہری پالیسیوں کے نتیجے میں آج واقعی ہمارا وطن عزیز پوری دنیا میں دہشت گردوں کی سب سے بڑے گڑھ کی شناخت اختیار کر چکا ہے۔ جب تک بیماری کو پہچانیں گے نہیں تو اس کا علاج کیا خاک کریں گے۔
पाकिस्तानी कौम को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस इलाज के तौर पर अमरीकी, भारतीय और इसराइली साजिश के लॉलीपॉप्स देने के बजाय बताया जाए कि सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में 3,900 पाकिस्तानियों को 225 खुदकुश हमलों में हलाक किया गया है। कौम को जोर देकर बताया जाए कि इन 225 खुदकुश हमलावरों ने न मस्जिदों को नमाज जुमा और न अफ्तार के वक्त बख्शा, न बाजारों को बख्शा, न स्कूलों को बख्शा। ये आफत बपा करने वाले खुदकुश हमलावरों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी अमरीकी नहीं था और एक भी इसराइली नहीं था, बल्कि सब के सब, जी हाँ, सब के सब खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। इस हकीकत के साथ ये कड़वा जहर भी निगलने के हालिया सालों में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के तकरीबन तमाम बड़े वाक़ात में या तो पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए या पाकिस्तान की सरजमीन पर उनकी प्लानिंग की गई। पाकिस्तान अस्करियत पसंदों, इंतहा पसंदों या खालिसतन दहशतगर्दों की जन्नत बनता नजर आ रहा है। ये मानते हुए ये जानना अशद ज़रूरी है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है। दुनिया में ख़तरनाक पहचान हासिल करने के लिए हमने तकरीबन 25 साल का सफ़र तय किया है। अगर आज दुनिया इस प्यारे मुल्क को दहशतगर्दों की बड़ी पनाहगाह समझती है तो उसकी वजूहात ठोस हैं। ये वजूहात क्या हैं? आपको इसके लिए अपनी याददाश्त को ताज़ा दम करना होगा और बहुत गौर से ये तफसीलात सुननी और देखनी होगी। 1985 कराची में पैन एम तैयारे को अगवा करने की कोशिश की जाती है। 22 लोग हलाक होते हैं। अगवा करने वाले फ़लस्तीनी नज़ाद हैं और अबू नदाल तंजीम से अपना ताल्लुक़ बताते हैं। गिरफ्तार होते हैं 5 फ़लस्तीनी और उनके 7 पाकिस्तानी। वक्त आगे बढ़ता है। CIA पर हमला होता है। CIA के हेडक्वार्टर पर 25 जनवरी 1993 पर हमला होता है। 2 CIA एहलकार होते हैं। हमला करने वाला एक पाकिस्तानी की हैसियत से शनाख्त होता है और 15 जून 1997 को डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी एमल कासी अमरीकी गिरफ्तार करते हैं। उसको उठा के अमरीका ले जाते हैं और वहां पर उसको सजाए मौत देते हैं। न्यूयॉर्क में पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका होता है। 26 फरवरी 1993 को हलाकतें 6 होती हैं। हमला करने वाला, प्लानिंग करने वाला रमजी मोहम्मद यूसुफ है। बाद में गिरफ्तार होता है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में गिरफ्तारी होती है 7 फरवरी 1995 को। अमरीकी उसको उठा के ले जाते हैं न्यूयॉर्क और वहां पर उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। कीनिया और तंजानिया में अमेरिका के बड़े सिफारतखानों पे हमला होता है। 7 अगस्त 1998 का वाक़या है। इसकी प्लानिंग करने वाला पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है। 25 जुलाई 2004 को गुजरात से अहमद खलफान गिलानी को गिरफ्तार किया जाता है। यमन के करीब अमेरिका के बहरी बेड़े पर USS कोल पर हमला होता है। हमले में 17 अमरीकी फौजी हलाक होते हैं। 13 अक्टूबर 2000 के होने वाले इस वाक़े की प्लानिंग करने वाला कराची में से गिरफ्तार होता है। 27 अप्रैल 2003 को जब वलीद मोहम्मद बिन अताश को गिरफ्तार किया जाता है। कराची के शेरेटन होटल पर हमला होता है। हलाक होने वाले 11 फ्रांसीसी इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के नेवी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी 8 सितंबर 2005 को कराची में होती है और मुफ्ती मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया जाता है। फ्रांस आज भी इस वाक़े की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस, यूरोप और अमेरिका ही नहीं, इंडोनेशिया में जब सबसे बड़े धमाके होते हैं उसके सयाहती मकाम बाली के करीब जिसमें हलाकतें होती है 202, इसका प्लानर, इसका सबसे मरकजी किरदार अब से थोड़ी दिनों पहले पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है और जी हाँ, एबटाबाद से ही गिरफ्तार होता है। इसका नाम उमर पाटेक है जो कि इस वक्त अब इंडोनेशियाई तहवील में है। लंदन में खुदकुश हमले होते हैं। लंदन की ट्यूब्स पर हमले होते हैं 7 जुलाई 2005 को। ये खुदकुश हमले 4 और इसमें हलाकतें 56। मुलव्विस अफराद में से 3 पाकिस्तानी नज़ाद खुदकुश हमला आवर थे, मोहम्मद सिद्दीक खान, शहजाद तनवीर और हसीब एहसन। और इसकी तैयारी करने में 20 जनवरी 2009 को जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो गैर मुल्की था, ज़बी अल लतीफ़ी, जिनको पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुंबई में हमले होते हैं 26 नवंबर 2008 को। हलाकतें होती है 164। गिरफ्तारियां होती है 12 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की। ज़कीउर रहमान लिखवी, हमाद अमीन, सादिक, जावेद इकबाल और जर्रार शाह को गिरफ्तार किया जाता है। एक पाकिस्तानी अजमल कस्साब भारत की तहवील में है और 9 और पाकिस्तानी जिन्होंने इन हमलों में हिस्सा लिया था उनको भारतीय पुलिस हलाक कर चुकी है। इसके बाद न्यूयॉर्क में एक और केस होता है और जिसमें एक और पाकिस्तानी सामने आता है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को धमाके से उड़ाने की कोशिश करने में पाकिस्तानी फैसल शहजाद को गिरफ्तार किया जाता है जिसने अमरीकी शहरियत इख्तियार की थी। अलकायदा के बड़े बड़े लोग, तमाम तकरीबन नामे गिराबी लोग पाकिस्तान से गिरफ्तार होते हैं। ज़रूर ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज और पाकिस्तान के इदारों की ताउन से गिरफ्तार होते हैं लेकिन होते पाकिस्तान से गिरफ्तार हैं। 28 मार्च 2002 को फ़लस्तीनी निजाद अबू ज़ुबैदा को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया जाता है।
11 सितंबर 2002 से कराची में यमनी नजाद रमजी बिन शहीद को गिरफ्तार किया जाता है। 1 मार्च 2003 को 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया जाता है। 18 मार्च को लाहौर से यासिर अल हज़ीरी को गिरफ्तार किया जाता है। 27 अप्रैल 2003 को वलीद बिन अताश को कराची से गिरफ्तार किया जाता है। 25 जुलाई 2004 को गुजरात से अहमद खलखान गिलानी गिरफ्तार होता है। 2 मई 2005 को अबू फराज अल लिब्बी जो अल-कायदा का नंबर 2 समझा जाता है, मर्दान से गिरफ्तार होता है। 10 मई कोयटा से मुस्तफ़ा नसर की गिरफ्तारी होती है। 20 जनवरी 2009 को पेशावर से जमी अल मुस्तफ़ा गिरफ्तार होता है। 25 जनवरी 2011 को एबटाबाद से उमर पाठक गिरफ्तार होता है। और अब से 3 दिन कबल उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमरीकी फौजें हमला करके हलाक कर देती हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सिफारत खानों को भी नहीं छोड़ा गया है। इस्लामाबाद में मिस्री सिफारत खाने पर हमला होता है। 17 मार्च 1995 को हलाकतें 17 होती हैं। अमरीकी कौंसल खाने पर कराची में हमला होता है। 14 जून 2002 को हलाकतें 12 होती हैं। अमरीकी कौंसल खाने पर हमला होता है कराची में ही। 28 फरवरी 2003 को 2 हलाकतें होती हैं। अमरीकी कौंसल खाने पर एक और हमला 15 मार्च 2004 को होता है। 4 हलाकतें होती हैं। इस्लामाबाद में डेनमार्क के सफारत खाने पर हमला किया जाता है। 2 जून 2008 को हलाकतें 5 होती हैं। पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला होता है और इसमें हलाकतें 49 होती हैं। 5 अप्रैल 2010 को ये वाक़यात हुए। आपने देखा दहशतगर्दी चाहे अमेरिका में हो, चाहे कीनिया में हो, तंजानिया में हो, यमन में हो, इंडोनेशिया में हो, बरतानिया में हो, बम्बई में हो या किसी और बड़े मुल्क में हो, पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हैं या पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ रखने वाले उसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर ये नहीं है तो इसकी पाबंदी, इसकी तैयारी पाकिस्तान में की गई है। अगर यही सब कुछ काफ़ी नहीं है तो ये भी जान लें कि इसके अलावा बरतानिया में अब तक जिन 50 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा चुका है, उनमें से तकरीबन 19 के पाकिस्तान से ख़ानदानी रवाबित थे, जबकि 27 अफराद ऐसे दहशतगर्दों में गिरफ्तार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मौजूद दहशतगर्दी के कैंपों में वक्त गुजारा है। अगर हमें अपने इस मुल्क को, इस वतन अजीज़ को बचाना है, इसे भारत नहीं तो कम अज़ कम बांग्लादेश की सतह तक लाना है और फिर उसके बाद इसे मुस्लिम मुल्क मलेशिया जैसी तरक्की से हमकरार करना है, तो ये सब बदलना होगा। ये तब्दीली सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है और वो ये कि फ़ौजी और सियासी क़यादत अवाम को साथ लेकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ यकरुखी, यहाँ सिर्फ यकरुखी पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान की बका की जंग का आगाज़ कर दे। याद रखें, ये मामला है इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं का।